students, we are seeing class 8, chapter number 7, that is conservation of plants and animals. Okay, this is a simple lesson and we are going to learn this through our textbook. Okay, let us see the first paragraph. We saw in class 7 that Paheli and Bujo has visited the forest along with Professor Ahmed and Tipu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them has visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lokchau Wildfire Sanctuary, the Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve. Okay, now see, when we read this paragraph, there are some words which are mentioned in this. I am highlighting those words. Okay, सबसे पहले जो आया है इसमें that is Bharatpur Sanctuary. The second word is Kaziranga National Park. The third word is Lokchau Wildfire Sanctuary and the fourth is Biosphere Reserve. Okay, Tiger Reserve also. These all those words which we have underlined here, they are related to the places where some plants or animals are conserved. Okay, some plants or animals जहाँ पे उसको conserve करके रखा जाता है. What is the meaning of conservation? Conservation means to save. We all know that there are some animals which have extincted from earth. For example, मैं नाम लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे dodo. Have you heard about dodo? Dodo was a bird which got extinct because of some reason, है ना? So there are many animals on this earth which are on the edge of being extinct from the surface of the earth. For example, the one which I have highlighted here, what is it? It is tiger. Tigers हम कई बार सुनते हैं न्यूज़ में कि there are very limited tigers which are present on the earth now. So जैसे tiger है, white elephants है, white tigers है. Okay, these animals are on the verge of extincting. Okay, and for this purpose there are some places on the earth which are reserved for the safety, for the protection of these animals. ऐसी जगह जो हैं उन्हें हम बोलते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है sanctuary. One of the example is sanctuary. Then there are national parks, there are biosphere reserve, है ना? तो ये सारी चीज़ों का मीनिंग क्या है, that we are going to explain in this chapter. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. What is the purpose of making national parks, wildlife sanctuary and biosphere reserve? ये चीज़ें बनाने का purpose क्या है? The purpose which we have discussed just now. What is the purpose? To make sure that some plants and animals are protected in that area. Okay, this question you have to write in your notebook. What is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve? Okay, let us move further. 7.1 Deforestation and its causes. A great variety of plants and animals exist on the earth. They are essential for well-being and survival of mankind. Mankind मतलब क्या? मैनकाइंड का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स. ओके, हमारी अर्थ पे कई सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है अवेलेबल है. ये सारे के सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स किसी न किसी तरीके से हमारे सर्वाइवल से, हमारी वेल बींग से क्या है रिलेटेड है ना? मतलब अगर कोई ऐसे बोला जाता है कि अगर माउंटेनस रीजन में कोई बटरफ्लाई भी एक्सटिंक्ट होता है या पोलर रीजन में भी, मतलब पोलर रीजन तो हमसे बहुत दूर है ना, लेकिन वहाँ पे रहने वाला एक आधा एनिमल या ऑर्गेनिज्म भी एक्सटिंक्ट होता है तो भी उसका इफ़ेक्ट हमें हमारे जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि फूड चेन से या बाकी किसी भी मेथड से ये जो लाइफ है अर्थ पर की वो कैसे इंटरकनेक्टेड है ना? कुछ एनिमल्स हमें डायरेक्टली यूज़फुल है. फॉर एग्जांपल वी नो दैट ऑक्सेस आर
डायरेक्टली यूजफुल टू अस, ये हमें पता है ना. कैमल्स आर यूजफुल टू अस, एलिफेंट्स आर यूजफुल टू अस, बट दोज एनिमल्स विच वी डोंट इवन थिंक दैट दे विल बी यूजफुल टू अस, they are by somehow, by some method connected to us. Okay, a great variety of plants and animals exist on the earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. ये वर्ड आपको नोटबुक में लिखना है, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट, मैं बता रही हूँ उसका मीनिंग. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स. आप क्या करते हो, आपके बेनिफिट के लिए कई सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है, वो चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है. उसके बाद में फॉरेस्ट जो है, ये फॉरेस्ट हम क्या करते हैं, हमें लैंड चाहिए, हमें बिल्डिंग्स बांधने हैं, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, हमें डैम्स बांधने हैं. ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम लैंड का सफाया करते हैं, फॉरेस्ट लैंड का सफाया करते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. The process is called as what? Deforestation. We know that deforestation की definition notebook में लिख लो. We know that deforestation means clearing of forest using that land for other purposes. We know that deforestation means what? Definition है, हाँ लिखनी है. Deforestation means clearing of forest using that land for other purposes. Write down the definition in notebook. The trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. Okay, what are the causes, what are the causes of deforestation? They are mentioned below. These causes we are going to write in our notebook now. हम क्या करने वाले हैं, ये सारे causes जो है हमारे notebook में लिखने वाले हैं. Okay, see what are the causes? Number 1 is for procuring land for cultivation. What is the meaning of cultivation? Cultivation means agriculture. Cultivation means what? Agriculture. Agriculture के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए. एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड चाहिए, और लैंड हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे अर्थ के ऊपर लैंड कैसी है, वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड लैंड ऑन द अर्थ. एंड फॉर दैट पर्पज इफ वी वांट टू यूज मोर एंड मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, वी हैव टू यूज द लैंड ऑफ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट की लैंड हम क्या करते हैं, वी यूज इट फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर. सेकेंड, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ना, और ये सारे लोगों को रहने के लिए हाउसेस चाहिए, घर चाहिए, अलग अलग चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए उनको क्या चाहिए, हमें फैक्ट्रीज चाहिए. हाउसेस एंड फैक्ट्रीज बनाने के लिए वी नीड व्हाट, वी नीड लैंड. और लैंड हमें कहाँ से मिलती है, वी गेट लैंड फ्रॉम forest. We get land from what? We get land from forest. Okay, so for that purpose also we clean forest, we do deforestation. And third is making furniture or using wood as a fuel. हमें फर्नीचर बनाने के लिए या फ्यूल के लिए हमें क्या लगता है, वुड लगता है. एंड वुड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से. तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ है वो ट्रीज़ का कटिंग करते हैं, और वो ट्रीज़ को कट करके हमें वहाँ से क्या मिलता है, we get material for building furniture, fuel, houses, factories, and for that purpose we do deforestation. हम deforestation करते हैं. Okay, these are the purposes of deforestation. ये हमें क्या करना है, नोटबुक के अंदर लिखना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. See the next process. Some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. Forest fire and droughts. These are natural causes of deforestation. Natural causes मतलब नेचर की वजह से होने वाले डिफॉरेस्टेशन. अगर कभी किसी वजह से जंगल को आग लगी, जैसे आपने अभी देखा है ना रिसेंटली अमेज़न में जो जंगल थे वहाँ पे इतनी बड़ी फायर जो कई महीनों तक चली थी, है ना, तो वो कैसे लगी, दैट इज़ व्हाट, इट इज़ ए नेचुरल डिज़ास्टर, वी कैन कॉल इट फॉरेस्ट फायर. एंड ड्राफ्ट्स मतलब कई सालों तक अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो प्लांट्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और वो अपने आप मर जाते हैं. सो दीज आर नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. यू हैव टू राइट नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर
फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवरल ड्रग्स। ये भी आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, लेट अस मूव फर्दर। एक्टिविटी 7.1, add more causes of deforestation to your list and classify them into man-made or natural. You have to classify them as man-made or natural deforestation causes. Okay, जैसे देखो नेचुरल में हमने 2 लिखे हैं, है ना। मैनमेड तो कई सारे हैं, तो आपको क्या करना है, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। क्या करके लाओगे आप होमवर्क में? होमवर्क में आपको ये जो क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी, ये सॉल्व करनी है नोटबुक के अंदर, और मुझे इसका फ़ोटो चाहिए ग्रुप के ऊपर। ओके, सी फर्दर। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कंसिक्वेंसेस मतलब क्या, रिजल्ट्स या परिणाम। डिफॉरेस्टेशन आपने कर लिया, डिफॉरेस्टेशन करने के बाद में उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, that we are going to discuss in this paragraph. Deforestation के consequences. Okay, Paheli and Bujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that, अभी ये कहाँ से remember, कि अगले साल हमने जो, पिछले साल जो हमने पढ़ा था, वहाँ से ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level of the earth. हमें पता है प्लांट्स के जो यूजेस है, प्लांट 2 चीज़ें करता है। प्लांट पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया तो इसके वजह से जो पोल्यूशन की लेवल है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है ना। और फॉरेस्ट का दूसरा एक यूज़ ये भी है कि फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट कॉजेस रेनफॉल। फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है ना। अगर रेनफॉल हुआ, और दूसरी चीज़ फॉरेस्ट जो करती है, एक प्रोसेस करते हैं प्लांट्स, उसे बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस की वजह से जो एयर है, एयर में का वाटर वेपर का कंटेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और वाटर वेपर का कंटेंट अगर इंक्रीज होता है तो आपका टेम्परेचर कैसे होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। और ये दोनों चीज़ें नहीं होगी अगर आपने डिफॉरेस्टेशन किया तो। सो व्हाट आर द consequences of deforestation? First is increase in the temperature and second is increase in the pollution level on the earth. Okay, these are 2 consequences of deforestation. Let us read further. The increase, it increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. ग्राउंड वाटर लेवल्स गो डाउन। ग्राउंड वाटर जो है, जैसे अभी देखो, अगर आपने डिफॉरेस्टेशन किया, डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स कम हो जाएंगे, प्लांट्स कम हो जाएंगे तो रेनफॉल कैसे होगा, रेनफॉल कम होगा। रेनफॉल अगर कम होता है तो रेनफॉल कम होने की वजह से आप वाटर कौन सा यूज़ करेंगे, जो आप यूज़ कर रहे हो वही आपको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। फॉर दैट रीज़न आपका जो ग्राउंड वाटर है, वाटर जो आपको कहाँ से मिलता है, ज़मीन में से मिलता है, उसकी लेवल क्या हो जाती है, इट्स लेवल इज़ ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, they know that deforestation disturbs the balance in the nature. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the soil will decrease. The rainfall and the fertility of the soil will decrease. Moreover, there will be increased chances of natural calamities which involve floods and droughts. अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो प्लांट्स रहेंगे ही नहीं ना किसी को बाइंड करने के लिए, तो रेनफॉल अगर बहुत होता है तो फ्लड्स आ सकते हैं, और नहीं होगा तो टोटल कैसे ड्राफ्ट्स हो सकते हैं ना। ये 2 भी क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है किसके, डिफॉरेस्टेशन के। ओके, रिकॉल दैट प्लांट्स and animals need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up and result in increased amount of carbon dioxide in the atmosphere. This will lead to global warming as the carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increased temperature on the earth disturbs
the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts. Okay, ड्रप्स भी आ सकते हैं उसकी वजह से. तो ये सारी चीज़ें जो है दे ऑल आर consequences of, they all are what? Consequences of deforestation. Okay, deforestation is the major cause which lead to the change in soil properties. soil की properties deforestation की वजह से कैसी होती है? चेंज होती है. कई तरह की सॉइल अगर आपकी सॉइल अभी कितनी भी फर्टाइल है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर का सारा फॉरेस्ट कवर अगर हटा दिया या प्लांट कवर अगर हटा दिया, तो उसके वजह से सॉइल कैसी बनेगी? आपकी सॉइल बनती है ड्राई. आपकी सॉइल कैसी बनेगी? इसकी वजह से ड्राई बनेगी. मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? चेंज हुई, है ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन की वजह से सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है. सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूमस इंक्रीज होने लगता है. न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी क्या होती है? चेंज होती है. मॉइस्चर रहता है सॉइल में. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of top layer of soil exposes the lower hard and rocky layer. This soil has less humus in it and is less fertile. ये जो नीचे की soil है वो कैसी होती है? उसमें humus भी कम होता है, fertility भी उसकी कम होती है. And gradually fertile land gets converted into desert. The process is called as desertification. Okay, the process is called as desertification. These are different consequences of deforestation. हम फिर से इसको रिवाइज करने वाले हैं सारे इसको. हाँ, deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of soil. Deforestation की वजह से क्या होता है? It also lead to decrease in the water holding capacity of the soil. Soil की water holding capacity कम हो जाती है. मतलब उसको बाइंड करने के लिए, वाटर को पकड़ के ज़मीन में सीप होने के लिए आपने कोई चांस ही नहीं छोड़ा है. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड, दैट इज इनफिल्ट्रेशन रेट. मतलब पानी ज़मीन के अंदर फिल्टर होने का रेट जो है वो रिड्यूस होता है. मतलब ग्राउंड वाटर रिड्यूस होता है. सो देयर इज़ फ्लड. ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो जाएगा और फ्लड्स आने का चांसेस आपका बढ़ेगा. द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, texture etc. also change because of deforestation. Deforestation की वजह से इतने सारे चेंजेस आप क्या करते हो? फेस करते हो. We have studied in class 7 that we get many products from forest. List these products and will we face shortage of these products if we continue cutting trees? Definitely we will feel shortage of these products. लेकिन कौन से products वो हमें क्या करने हैं? लिखने हैं. ठीक है, चलो हमने कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखे फिर से एक बार. अभी राइटिंग वर्क करने के लिए मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ. पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है. पहला कॉन्सिक्वेंस आपको लिखना है, डिफॉरेस्टेशन कॉजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑफ अर्थ. ये है आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपको क्या करना है? नोटबुक में लिखना है. सेकेंड, ग्राउंड वाटर is lowered. This is second point. आगे बढ़ते हैं. Okay, third point, there will be increased chance of natural calamities such as floods and drought. This is fourth point. Third point. Fourth point you can write that deforestation will result in increasing the कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा. इट इज़ अवर 4 पॉइंट. 4 पॉइंट मैं जो बोल रही हूँ वो लिखना है. डिफॉरेस्टेशन कॉजेज द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. इट विल increase the temperature of the earth. It will increase the temperature of the earth. फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है. फिफ्थ पॉइंट ड्राफ्ट कॉज करता है, ये लिखा है हमने. नेक्स्ट आपको लिखना है फिफ्थ पॉइंट, दैट डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज विच लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, है ना. तो सिर्फ इतना लिखना है, डिफॉरेस्टेशन कॉज
change in soil properties. Deforestation cause change in soil properties. Okay, the soil become less humus and less fertile. That you can also add. The soil become less humus and less fertile. Okay, next, deforestation leads to decrease in water holding capacity of the soil. Deforestation leads to decrease the water holding capacity of the soil. Okay, ये सारे पॉइंट्स हमने क्या किए, मेंशन किए. जो 7.3 पॉइंट है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.